Chapter 1, Exploring the Investigative World of Science. Welcome back. On the first page of each chapter, you will find a set of questions. They are not meant for any exam, they are unique questions to spark your curiosity to explore the world of science. फर्स्ट पेज में इसमें क्या दिया है कि जो पहला चैप्टर के हर पहले पेज पे कुछ कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा जिससे आपकी क्यूरियोसिटी जो है साइंस में वो बरकरार रहे. वाई वन साइड ऑफ पूरी थिनर देन अदर. तो ये क्वेश्चन में आप लोग देखिए, वाई इज वन साइड ऑफ पूरी थिनर देन अदर. इस क्वेश्चन का आंसर चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है. आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल बीचेस एंड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड और मोर स्टार्स इन आवर गैलेक्सी. Right from grade 6, we observe the incredible diversity of plants and animals around us, from different shapes of leaves to many kinds of insects. Why has nature created such a vast variety? इसमें ये पूछा गया है क्लास 6 में हम लोग ये देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स होते हैं, मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं. तो नेचर ने इतने वैरायटी के इंसेक्ट्स, इतने वैरायटी के प्लांट्स, इतने वैरायटी के ऑर्गेनिज्म क्यों बनाए? Is there such a question that makes you curious about the world? Write it here. Next, our journey with curiosity into the world of science continue in grade 8 also. 8 में भी हम लोग पढ़ेंगे. I hope you bring among the spirit of adventure of exploration that was guided so far. In grade 6, we discovered how science began with the wonder with simple why. तो क्लास 6 में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें हमने पढ़ा है कि साइंस में why and how. Grade 7 में हमने क्या पढ़ा? We learned that science is always evolving, that each answer opens new questions. बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें 7th क्लास में जिसमें हमने पढ़ा है and how our idea can slowly change as we explore deeper. Now in grade 8 we take the next steps entering the investigative world of science where wonder and evolution come together. तो both wonder के बारे में पढ़ेंगे हम लोग एंड इससे जुड़े हुए जितने भी इवोल्यूशन है, जितने भी नए नए इक्विपमेंट्स, नए नए मशीन बने हैं to form heart of how science works. We don't want you to learn just new facts, we want you to learn how to find new facts also. जिसमें हमने ये भी पढ़े नए फैक्ट्स और नए फैक्ट्स निकाल जान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए. इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर than just looking at something and asking only simple questions. तो साइंस क्या है? साइंस में क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है कि ये कोई भी चीज हाउ इट हैपेंस and why it happens. Now, you can ask more focused question and design way to perhaps the simple experiment to answer those questions, and then use your observation to improve your understanding. Step by step, we will learn how to use questions as starting point to try to observe carefully. Experiment भी हम लोग करेंगे इसमें. Experiment through thoughtfully and critically. Let me see. In doing so, each of you don't just be learner but also investigator. तो हमने इसको लर्नर के जैसा नहीं, इन्वेस्टिगेटर जैसा किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के जैसा सोचना है, यंग साइंटिस्ट के जैसा. एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल्स. These may range from everyday life like why does dough fry. Dough मतलब आटा. आटा को बोला क्यों राइज होता है. अगर हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तो आटा को बोला राइज हो जाता है. तो हाउ इट हैपेंस. So the bigger mysteries of Earth and beyond, like in the world getting warmer. How the world is getting warmer. This is also a good question. ये सोचने वाली पॉइंट है कि टेम्परेचर आज के दिन में क्यों बढ़ते जा रहा है. या
पृथ्वी गर्म कैसे रहती है। As you turn each page of this book, we hope you notice the interesting design of our page numbers once again. Very important name. On the left hand pages at the bottom, you will find the image of a root symbol, symbolizing the deep, solid foundation of knowledge that keeps us connected to our environment, tradition, and our culture. On the right hand page, in the top corner, you will find a kite soaring in the sky, reminding us that curiosity must take flight if we are explore the unknown. तो हर पेज में क्या है, राइट साइड में हम लोग को क्या मिलेगा, टॉप कॉर्नर पे एक काइट मिलेगा। ठीक है, आगे चैप्टर्स में। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, बॉटम में, तो बॉटम में ये मिलेगा कि सिंबलाइज डीप सॉलिड फाउंडेशन। टुगेदर दिस टू सिंबल्स रूट एंड काइट दोनों मिल के क्या गया, इनवाइट यू टू स्टे ग्राउंडेड इन द रियल ऑब्जर्वेशन वाई योर आइडिया टू सोर टुवर्ड्स न्यू हॉरिजन। तो ये हम लोग को ध्यान देना होगा। Remember, investigation in science work best only when we balance the solid ground of careful observation with freedom of creative thinking. You will also notice some pattern in the line at the bottom of the page. इस पैटर्न के बारे में बात किया जा रहा है जो हर पेज के नीचे में है। There are some hidden scientific thought in this well, but don't worry, they are mainly to make the page a little less boring. इसका मतलब है सही। Let us now take a brief look at the very stop of our journey this year and see where our curiosity is supported by strong roots and lifted by soaring ideas. ये ज़्यादा important नहीं है as a point view of this year. Our investigation adventure will take us our journey from a teeny microbes we can't see to planet-wide challenges we get in. We'll start any examining something as well as single drop of water and uncover a hidden world of teeny organism. तो ये सब पढ़ना है वाटर के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में, unseen but deeply linked to us. Some of these are invisible helpers that help us digest our food and produce medicines. Organisms are very helpful. ठीक है, ये important है, that help us digest our food, produce medicines, मेडिसिन बनाने में, and while other microorganisms क्या है, वो harmful है and cause infection. But what does our body need to stay healthy? How do we fight this infection? Infection से भी लड़ना है. We will find out how nutritious food. तो हेल्दी रखने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन फूड चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, मेडिसिन, वैक्सीन, help us stay healthy and fight infections. But that is just the beginning. In today's world, science does play a major role in improving our life. और भी साइंस का बहुत सारा रोल है जिससे हमारा जो डेली लाइफ है वो इम्प्रूव हो सकता है. For example, we use electricity current in many ways to make our life easier. Electricity is very important आज के डेट में. We depend on the heating effect of electric current to keep us warm, while the magnetic effect helps motor run and machine. दो तरह का इफेक्ट हम लोग को पढ़ना है, एक इलेक्ट्रिक करंट का और एक मैग्नेटिक इफेक्ट. दिस फिनोमेना डिपेंड ऑन द फंडामेंटल फोर्सेस. एक फोर्स लगता है, अब कौन सा फोर्स लगता है, तो अलग अलग फोर्स लगता है. इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अलग फोर्स है, मैग्नेटिक इफेक्ट अलग फोर्स है. सो आफ्टर वॉचिंग इलेक्ट्रिसिटी डू वर्क, we move on study these forces themselves, starting with those that make objects speed up, slow down, on change direction. तो फोर्स क्या है, फोर्स से ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ता भी है, स्लो भी होता है, एंड फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो. ये आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. अंडरस्टैंडिंग फोर्स हेल्प एक्सप्लेन व्हाई अ बॉल थ्रोन अप in the air fall back to the ground, why a car stops
when the brakes are applied. ये देखिए बॉल नीचे क्यों आ रहा है, कार रुक क्यों जा रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे. दिस ऑल्सो लीड अस टू द आइडिया ऑफ प्रेशर. उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रेशर के बारे में पढ़ना है. हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट. व्हाट इज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर. तो वो कैसे फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट. द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव्स. एयर कैसे मूव करता है विद द हेल्प ऑफ फोर्स एंड प्रेशर, ये भी हम लोग को पढ़ना है. A small difference in pressure can result in a gentle breeze while gentle breeze मतलब हवा चलना, ऐसा ब्रिज ये जो पिक्चर में दिया हुआ है. तो थोड़ा सा भी अगर प्रेशर एयर का चेंज होगा तो तेज हवा चलने लगेगा. while a strong pressure can lead a strong wind. स्ट्रॉन्ग प्रेशर से क्या होगा, तूफान आएगा. एंड समटाइम्स साइक्लोन्स भी आएगा. तो ये हम लोग को पढ़ना है. So next is, so these forces are connected to the powerful weather event like storms and cyclones. प्रेशर ऑफ एयर को बढ़ाने या घटाने से क्या आता है, स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान या साइक्लोन्स आते हैं. दैट अफेक्ट आवर डेली लाइफ. क्या क्या, एग्रीकल्चर एंड सेफ्टी. टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ एयर कैन exert pressure or why water boils at a certain temperature, we need to zoom into these particles and see what kinds of particles they are made up of. बोलते हैं कि क्यों वाटर बॉयल करता है किसी खास टेम्परेचर पे, हाउ एयर एग्जर्ट करता है. इसके लिए हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये जो वाटर है या एयर जो है वो बने किससे. तो ये है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड का पार्टिकल्स, लिक्विड का पार्टिकल्स एंड गैस का पार्टिकल्स. Everything around us is made up of tiny particles, material that are solid. These particles cannot move, while in gas they can move freely. तो atoms, every particle जो है वो बने हैं very teeny particles called atoms. ठीक है. तो सॉलिड में क्या होता है, ये एटम क्लोजली पैक्ड रहते हैं. लिक्विड में क्या होते हैं, हल्के स्पेस में रहते हैं एटम्स. और गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस में रहते हैं ये एटम्स. एक एटम और दूसरे एटम के बीच में स्पेस ज़्यादा रहता है. सॉलिड में बहुत कम रहता है. देखिए वाइट वाइट जो है, इसका मतलब है कि ये थोड़ा थोड़ा स्पेस है. लिक्विड में यही स्पेस ज़्यादा है, सॉलिड में बहुत ज़्यादा है. Classifying things around us is an important feature of science. We can also classify material around us into elements. अब क्या है कि हम लोग को जितने भी मटेरियल हैं हमारे अगल बगल, उसको क्लासिफाई करना है. तो कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, प्योर मटेरियल, कंपाउंड, कंपाउंड मतलब टू और मोर एलिमेंट्स बाउंड टुगेदर, एंड मिक्सचर, मिक्सचर मतलब कॉम्बिनेशन. कंपाउंड एंड मिक्सचर में क्या होता है कि मिक्सचर में एनी प्रोपोर्शन में हम लोग मिक्सिंग कर देते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का या पार्टिकल्स का. कंपाउंड में क्या था, फिक्स रेशियो में आता है. व्हाट इज कंपाउंड, फिक्स रेशियो में हम लोग कॉम्बिनेशन होता है. तो ये पढ़ेंगे हम लोग. वंस वी नो हाउ पार्टिकल कंबाइन और मिक्स, वी कैन देन अंडरस्टैंड सॉल्यूशन. उसके बाद पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के बारे में. हाउ शुगर डिजॉल्व इन टी टू मेक इट स्वीट. फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड मिक्सचर वी देन मूव इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट. इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, लाइट के बारे में पढ़ना है. चैप्टर 1 जनरली एक इंट्रोडक्शन है इस बुक, एनसीईआरटी का नया सिलेबस में. वी विल स्टडी हाउ लाइट रिफ्लेक्ट्स. क्या क्या पढ़ेंगे लाइट में, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, बेंड्स व्हेन पास थ्रू लेंस, लेंस के बारे में पढ़ेंगे. हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस. द बेंडिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन वी सी एन इमेज इन अ शाइनी मेटल स्पून. मेटल स्पून में बहुत सारे लोगों ने आपने चेहरा देखा होगा अपना. तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन से हम लोग उसको समझेंगे. हाउ करेक्टिव ग्लासेस हेल्प अस मैनी ऑफ अस क्लियरली सी. तो ये तो लेंस है.
करेक्टिव ग्लास इज द लेंस, जिससे चश्मे में हम लोग यूज करते हैं. इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिश मिरर दैट रिफ्लेक्ट लाइट, रफ सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट एंड. बोलता है कि पॉलिशिंग मिरर की केवल रिफ्लेक्शन नहीं करता है, कोई भी सरफेस जिसपे लाइट पड़ रहा है वो सरफेस क्या करता है, लाइट का रिफ्लेक्शन करता है. एंड मून भी, depending on the relative position of the earth, moon and sun, slightly different part of the moon is illuminated each night. तो सबको जानते हैं कि चांद पे क्या होता है, अलग अलग पार्ट हम लोगों को अलग अलग दिन दिखता है. ये पूर्णिमा में दिखता है, उसके बाद चांद क्या होता है, धीरे धीरे पूरा काला हो जाता है, फिर धीरे 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 पूरा फुल मून दिखता है. तो ये कैसे दिखता है, ये दिखता है कि slightly different part of the moon is illuminated each night, giving rise to the beautiful phase of the moon that we see in the sky. तो ये पोजिशन ऑफ मून, सन और अर्थ के चलते डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मून हम लोग को दिखते हैं. वॉचिंग द पीरियोडिक साइकिल ऑफ द मून फेज अलाउड ह्यूमन टू कम अप विद द फर्स्ट कैलेंडर. फिर इसी से क्या हुआ था, कैलेंडर बना था. जो ह्यूमन का पहला कैलेंडर है डेट्स का, तो ये मून पे ही कैलेंडर बना. बाय कंबाइनिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ सनराइज, सनसेट एंड लूनर साइकिल, वेरियस कैलेंडर केम इनटू बीइंग. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सनराइज, सनसेट्स एंड लूनर साइकिल, इसके बेसिस पे बहुत सारा कैलेंडर बाद में बनने लगा. तो साइंस इज जनरली हेल्पफुल फॉर अस. Isn't it fascinating that the calendar which determine our routine on Earth are linked to the motion of objects far beyond our? तो ये सभी लोगों को एक आश्चर्य ही है कि डेली रूटीन में जो हम लोग अर्थ पे कर रहे हैं, उसका टाइम टेबल हम लोग बना रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से जो बहुत दूर है हमारे प्लैनेट से. Now, but it is not just calendar or the movement of the sun and the moon that are linked. Right here on the Earth, there are marvelous and complex pattern of relationship between living organisms and their environment. तो ऐसा नहीं है कि अर्थ और मून का, अर्थ और सन का इनका ही रिलेशन है. रिलेशन है हमारे ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का भी. एवरी लिविंग बीइंग, फ्रॉम टीनेस्ट insect to the largest whale, from blades of grass to tall tree, depend on and respond to the up. ये सारे लोग, कौन कौन, छोटे से छोटे इंसेक्ट्स, प्लांट्स, ट्री, ये सारे लोग रिस्पॉन्ड करते हैं किससे, एयर, वाटर, सनलाइट. कहने का मतलब क्या है कि जहाँ एयर अगर क्वालिटी खराब है, या एयर गर्म है, या एयर ठंडा है, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्स, उसको भी रिस्पॉन्स करेंगे ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, ये सारे लोग. सनलाइट, सनलाइट ज़्यादा है कम है, उसको भी ये जितने भी प्लांट्स और यहाँ पे एनिमल्स है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. एंड वाटर को भी. In the final chapter of this book, we can put it all together and try to understand what makes Earth just right. फाइनल चैप्टर में हम लोग इस सबको एक साथ थोड़ा थोड़ा कंबाइन करेंगे. For life to recognize the urgent challenges that our planet now faces. और ये देखेंगे कि हम लोग का planet में challenges क्या है. Due to the change in the quality of air, water, क्या क्या effects आ रहा है. Most importantly, the Earth lie at the perfect distance from the Sun. ये सबको पता है कि Earth and Sun के बीच में एक खास दूरी है, जिसके चलते यहाँ पे एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना हुआ है, जिसके चलते यहाँ पे लिविंग थिंग्स जो है वो सरवाइव कर पा रहे हैं. तो ड्यू टू दिस परफेक्ट डिस्टेंस के चलते यहाँ का मौसम ठीक है, ना गर्मी है ना ज़्यादा ठंडा है, बारिश होती है. वेयर वाटर रिमेन्स लिक्विड एंड इट हैज एन एटमोसफेयर, एटमोसफेयर भी बना हुआ है. दैट प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन वी ब्रीथ while shielding us from harmful ultraviolet rays. तो एक प्रोटेक्टिव लेयर है एटमोसफेयर का, जिसके चलते क्या है कि हार्मफुल रेज ऑफ जो सन है, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे वो एटमोसफेयर हम लोगों को बचाता है. और क्या है एटमोसफेयर के चलते,
डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, जो कि गैसेस हमारे काम के हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो प्लांट्स के काम में आते हैं, NO2 नाइट्रोजन भी है, जिससे को प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू ऑब्जॉर्ब करते हैं, तो वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बट ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द प्लांट कैन cause small changes in the temperature of the earth, disturbing climate pattern with the dangerous consequences. तो ह्यूमन एक्टिविटी के चलते टेम्परेचर अर्थ का बदल रहा है। At the heart of both the problem and many possible solutions is us. We are once influencing Earth climate, but we are now also the ones who can and must use science to understand these changes and guide our action. तो प्रॉब्लम्स तो हुए हैं, पर ड्यू टू द हेल्प ऑफ साइंस हम लोग इसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस. The same scientific principle that we have guided our journey through the middle stage, observing. क्या क्या प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्विंग, मेजरिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग. तो साइंस के तीन ही प्रिंसिपल है. ऑब्जर्व कीजिए, उस चीज को मेजर कीजिए और फिर उससे एक्सपेरिमेंट कीजिए. Will be key in helping us protect the delicate balance on which life depends. The challenges ahead won't always be easy. We hope some of you will try to solve this difficult problem with curiosity as your guide. Now, next is to help you think like a scientist. Let us go back to the question जो फर्स्ट पेज में पूछा गया था कि पूरी क्यों एक तरफ से थिनर होती है. तो फर्स्ट रिमेंबर दैट साइंस इज एवरीवेयर. यू डोंट हैव नीड ऑफ फैंसी लेबोरेटरी. हर जगह फैंसी लेबोरेटरी का जरूरत नहीं है. हमारा किचन भी एक वंडरफुल जगह हो सकता है जहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व और क्वेश्चन को पूछ सकें. ऑल यू नीड इज टू स्टार्ट द क्यूरियोसिटी एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन. ये इम्पोर्टेंट है. हैव यू नोटिस हाउ अ पूरी और अ भटूरा puff up when placed in a hot oil, और how a फुल्का swells when put directly into the flame. तो ये दो चीज आपने देखा होगा, पूरी और रोटी बनते हुए. फुल्का मीन्स चपाती. तो कैसे वो पक जाता है, एंड why is one side thinner than the other side? There are questions the scientists might be asked and you can too. आप भी अपने आप से पूछ सकते हो. Let us see how we can investigate this simple everyday phenomenon like a scientist. तो साइंटिस्ट के जैसे हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we will try to ask a question कि what are the different things that may be changed during a पूरी puff when fried. तो हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं. To understand answer this we may want to do some simple experiment. For that we try and find out two main things. What can we change या what can we control. तो दो दो चीज है, एक चेंज कर सकते हैं और कंट्रोलिंग करना. चेंज क्या क्या कर सकते हैं. डफ को चेंज कर सकते हैं, उसमें आटा मैदा या और भी कुछ कुछ मिला सकते हैं. फिर पूड़ी का थिकनेस चेंज कर सकते हैं. कंट्रोल कर सकते हैं, ऑयल का टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, है ना. टेम्परेचर ऑफ द ऑयल. और ट्राई एंड ड्रॉप द रोल्ड डफ इनटू द ऑयल, और जिस तरह से उसको गिरा रहे हैं हम लोग तेल में, वो भी चेंज कर सकते हैं, जैसे वर्टिकली या साइड से स्लाइड एट एन एंगल. दीज आर द चेंजेस दैट वी कैन कंट्रोल. ये दो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. However, we can sense a change. We also need to think that what we can observe या measure. के बाद चेंजिंग के बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट कर सकते हैं. ऑब्जर्व में क्या क्या कर सकते हैं. मे बी we can start checking whether the पूरी puff, और we can measure the time. तो ये दो चीज हम कर सकते हैं कि इसका थिकनेस क्या होगा पूरी का, या टाइम कितना है, ठीक है. वेरी थिक लेयर ऑफ द डफ स्टिल गिव अ थिन लेयर. क्या बहुत मोटा जो लेयर है वो क्या पतला पूरी का पफ देगा. तो ये तो नहीं देगा. ऑल्सो while doing such experiment it is better to change only one thing at a time
जब कभी भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक ही चीजों को चेंज कीजिए, बाकी चीजों को सेम रखिए, कीपिंग द अदर कंडीशन सेम. For example, if you want to see the effect of boiling hot and hot, very hot oil, we use circle of the same thickness. जब आपको गर्म और बहुत गर्म, ये तीन कंडीशन है ऑयल का, उस समय आपको थिकनेस जो है वो सेम रखना है और फिर ऑयल का सिर्फ टेम्परेचर बदलना है. इट इज ऑल्सो गुड आइडिया टू कीप नोट्स, और इसका नोट्स भी रखना है. यू सी एंड सेंस डूइंग इतना. डिड द ऑयल स्प्लैटर स्प्रेड और स्मोक. अब जब आप थोड़ा गर्म करोगे तो स्प्लैटर होगा, बिखरेगा. ज्यादा तो उससे ज्यादा गर्म करोगे तो स्मेल आएगा. बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे क्या होगा, ऑयल में स्मोक आने लगेगा. आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चंस. और भी क्वेश्चंस आप सोच सकते हो. डू पूरी बेटर देन व्हेन मेड फ्रेश या स्टोर. तो फ्रेश पूरी से ज्यादा अच्छा पफ पूरी फूलेगा, या स्टोर वाला जो आटा है उससे ज्यादा आपको फूलेगा पूरी. व्हाट हैपेंस इफ आई प्रिक अ होल. अगर हम लोग उसमें छेदा कर देंगे तो क्या होगा. दिस इज एग्जैक्टली हाउ ऑल साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट फ्रॉम सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन. इस तरह से क्या होता है कि एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, सिंपल से मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बनता है. दिस इज द आइडिया ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन. एंड जस्ट so you know, when this simple everyday observation of foodie puff is not really complicated, understood by scientists today. So whether it is the popping of foodie or the shrinking bright part of the moon, foodie का popping होना, खुलना, या मून का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में आना. लेट यू केयरफुल ऑब्जर्वेशन. सारी चीजों में आपका ऑब्जर्वेशन केयरफुल होना चाहिए, जो कि आपको गाइड करेगा along your exploration into the investigation वर्ल्ड ऑफ साइंस. तो ये एक्सप्लोर करेगा आपको साइंस की दुनिया. इस तरह से ये पहला चैप्टर खत्म होता है. अगर ये चैप्टर और डिस्क्रिप्शन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू.